तो मुझे भी लगा था कि थोड़ा सीरियस सा माहौल होगा। वो बहुत सीरियस सा चेहरा लेके बैठे होंगे पैनल मेंबर सर लोग। पर जब मैं अंदर गई तो 4 मेंबर्स थे वहाँ पे, 2 सर थे, 2 मैम, और जो चेयरमैन सर थे वो इतने फ्रेंडली थे। अंदर जाके वो एटमॉस्फेयर, वो वाइब्स बहुत अच्छी थी। एंड आई जस्ट रिसेंटली ग्रेजुएटेड इन जुलाई 2025 एंड दिस वाज माय फर्स्ट बैंकिंग एग्जाम. I cleared it, so I'm very happy about it. I had this Olive Board subscription from 2 years, and I have been giving mocks every day. So I think the major part of clearing this exam was by giving mocks. दिल्ली का AQI ज्यादा क्यों है पूछा था, और आजकल जो नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे हैं उसका क्या रीजन था. देन आई यूज्ड टू गेट आई वाज गेटिंग 90 अबाउट 90 परसेंटाइल. सो आई थिंक गिविंग मॉक्स इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी. तो जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन जीए के न्यूज़पेपर से भी थे, पर मेजरली वो जैसे जो पीडीएफ्स आती है मंथली, जैसे कैबिनेट अप्रूवल्स वगैरह, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है. So, hi guys, a very good evening to all of you. We have Tanushri with us. She has recently qualified SBI PO, one of the most aspiring banking examinations that usually banking aspirants they wish for. So, Tanushri, first of all, many congratulations for qualifying SBI PO exam. Will you tell me that in which attempt did you qualify this exam? Firstly, thank you, ma'am, for the wishes. This was my first exam, first attempt of SBI PO. Okay. So when you qualified in examination in the first attempt itself, so the happiness it doubles, right? Yes, ma'am. Okay. So just give a brief introduction about yourself. So, ma'am, I'm Tanushri Pandey. I'm from Haldwani, Uttarakhand, and I just recently graduated in July 2025, and this was my first banking exam. I cleared it, so I'm very happy about it. And this was my first banking exam experience. I've never given any exam before. Okay, so you did not take RBPS and any other exam. The first exam was SBI and you qualified SBI only, right? Yes, Okay. ma'am. So Tanushri, how much preparation did you take and what all sources you followed? Will you tell? Ma'am, I started the preparation for this exam from my college itself. I was in third year, so I started preparation there itself. I mostly followed for the basics. I used to watch YouTube videos, and once I completed the basics, I started giving mocks. And I had this Olive Board subscription from 2 years, and I have been giving mocks every day. So I think the major part of clearing this exam was by giving mocks. That increased my speed and cleared my basics. Okay. So can you tell me that what was your strong section and what were your weak sections? Now, my strong section I feel was reasoning and English. Reasoning, I had interest in reasoning, and reasoning के questions करना मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो वो मेरा strong point था. And weak में I feel that quants थोड़ा मुझे लगता था weak, क्योंकि उसमें percentile मेरी starting में बनती नहीं थी, तो वो थोड़ा मुझे weak लगता था. एंड जीए तो एवरेज थी, तो जीए में ऐसा कुछ था नहीं, मतलब ना ज्यादा अच्छा ना ज्यादा बुरा. So you were good at English, quant was your weak point. So how did you overcome, how did you work on quant? Because मैम, usually students they fear quant in a banking exam. yes, ma'am. Ma'am, in quants, starting from prelims, I saw that the main thing was speed. So I was not getting that speed. I can solve the questions, but it was taking a lot of time. So my brother suggested me to give lots of mocks. So initially, I was getting 60 to 70 percentile sectional in sectional, and I used to give prelims mock every day. Especially for quants, I used to give sectional mocks. And after a certain period of time, after applying some strategies like attempting DI first, attempting basic simplification first, and then going for other questions, the speed comes. And then I I was getting 90 about 90 percentile. So I think giving mocks is the topmost priority. Very, yes, because usually what happens, the student first they focus on concept and they do not prioritize mocks. But mock tests are more important than concept. Like you can improve your concept by giving mock test regularly. Definitely. So I think you followed the right strategy. Acha, only you were taking the mock test regularly, or were you doing the analysis also? Ma'am, after giving the mock test, I was watching that which questions I was not able to do correctly, and why was this happening. And one thing I saw कि मेंस में हमें सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं. हमें मेन जो स्ट्रेटजी है कि हमें वो क्वेश्चन चूज करना है जो हमें लगता है कि हमसे हो जाएंगे. क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि वी चूज अ क्वेश्चन विच इज वेरी टफ एंड वो हमसे होता नहीं है, तो हमारा आधा टाइम वेस्ट हो जाता है. तो ये स्ट्रेटजी रखना बहुत जरूरी है कि कौन से क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं.
सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन मैटर्स बिकॉज यूजुअली मेंस में क्या होता है कि अगर हम क्वांट और रीजनिंग की बात करें तो हार्डली स्टूडेंट दे आर एबल टू सॉल्व 10 क्वेश्चन भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो सिलेक्शन मैटर्स, अदरवाइज फिर वही होता है कि बच्चे स्टक हो जाते हैं और फिर उन्हें पता नहीं होता है। सो दिस वाज योर स्ट्रेटेजी फॉर प्री एंड मेंस एग्जामिनेशन। ओके जी, आपने कब से पढ़ना स्टार्ट किया था? मैम जीए, मैम ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने जनवरी से थोड़ा जीए, मतलब जब मैं कॉलेज में थी तो वहां से ही मैंने थोड़ा, क्योंकि मुझे था कि मेरे भैया ने भी बोला था कि थोड़ा अपना एक वो हो जाएगा, एक मोमेंटम बन जाएगा। तो आई वाज स्टार्टेड इन जनवरी। एंड उसके बाद आई यूज्ड टू गिव मॉक्स। तो जैसे ऑलिव बोर्ड में ही हमें एक मंथ का पूरा एक मॉक आता है, तो उसको करेंगे 2-3 बार। यूज टू आई मतलब गिव। एंड उसके बाद एक क्वेश्चंस, आपको आंसर्स भी थोड़े याद हो जाते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी मैंने फॉलो करी थी। डेली आई यूज टू रीड एक पीडीएफ एंड फिर मंथली आई यूज टू रिवाइज। दिस एंड व्हाट वाज अबाउट न्यूज़पेपर रीडिंग? मैम न्यूज़पेपर तो वो तो मैम तो रेगुलर होता ही था। पर जीए के जो, न्यूज़पेपर, हाँ। हाँ, तो जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन जीए के न्यूज़पेपर से भी थे। पर मेजरली वो जैसे जो पीडीएफ्स आती है मंथली, जैसे कैबिनेट हाँ। अप्रूवल्स वगैरह, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। So, GA, you said that you started doing from January itself, means you did not wait for the pre-examination to happen over, to get over, and then for the means you will start GA. Because usually it happens that students, they avoid GA completely. So that is also one of the mistakes they do. GA आपको first day से ही पढ़ना है, वो pre में नहीं आता, that is different thing, but GA इतना vast होता है ना, and basically uncertainty is more in GA. So इसलिए अगर आप daily पढ़ोगे तो better होगा. Okay, so coming to your descriptive part, how did you do descriptive? मैम डिस्क्रिप्टिव में ऑनेस्टली ये एग्जाम मेरा पहला था, तो मैंने इसका एक दिन पहले ही मतलब थोड़ा मैंने ऊपर ऊपर से देखा था। एंड आई ऑल्सो वॉच योर वीडियोज इन यूट्यूब, जहाँ पे आपने मॉक के एनालिसिस भी करे थे, तो वो मैंने एक दिन पहले देखा था। ईमेल था इसमें, सिचुएशन एनालिसिस थी, प्रेसी राइटिंग, तो वो था। और एक मैंने मॉक दिया था जाने से पहले, मतलब एक दिन पहले ही ऑलिव बोर्ड में ही दिया था मैंने। एंड वहां पे एसबीआई के पेपर में एम्पल टाइम होता है, 30 मिनट्स में प्रॉपर 2 सेक्शन होते हैं, प्रॉपर 15-15 मिनट्स होते हैं, तो आप आराम से वहाँ पे टाइप कर सकते हो, सोच सकते हो। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर दिस पेपर आई फेल्ट वाज वेरी इजी, एंड क्वेश्चंस भी बहुत इजी थे। See, it depends na, if you are good at English. सबसे पहले तो जरूरी होता है like if you are good at English, if you know how to write, so definitely you will be able to write. Question could be पूछेगा because structure, format, all these things are just like 30 minutes. In 30 minutes you can learn all the structure, format, everything. But the most important thing is if you do not know how to write, तो अब फिर वो problem हो जाती है. So like you said that you have been good at English, English was not a problem for you, so that is why you felt it quite easy, right? But for some student, descriptive can be challenging. So I wanted to ask you, as you said that you were good at English and reasoning. So for English, did you do something or it was your academics only? या आप newspapers पढ़ते थे, editorial पढ़ते थे? Can you help our students? Ma'am, I used to watch videos on YouTube of editorials, and I used to read newspaper, and I used to also used to read novels. तो कहीं ना कहीं वो रीडिंग करके इंग्लिश बहुत अच्छी हो गई थी। So we have seen descriptive also. Now coming to your personal interview part, how was your interview experience? Ma'am, it was very different. Actually, it was my first interview. I have never given any interview. Even in college, I didn't give. So it was the first time. And इंटरव्यू में जब मैं गई तो मुझे लगा था कि थोड़ा सीरियस सा माहौल होगा। वो बहुत सीरियस सा चेहरा लेके बैठे होंगे पैनल मेंबर सर लोग। पर जब मैं अंदर गई तो 4 मेंबर्स थे वहां पे, 2 सर थे, 2 मैम, और जो चेयरमैन सर थे वो इतने फ्रेंडली थे। अंदर जाके वो एटमॉस्फेयर, वो वाइब्स बहुत अच्छी थी। इतने फ्रेंडली तरीके से उन्होंने, मतलब उन्होंने बोला कि पूरा बहुत अच्छा इंटरव्यू, उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। बहुत मतलब फ्रेंडली वे में उनने लिए क्वेश्चंस भी, वो मेरे से बेसिक क्वेश्चंस पूछे थे। तो Did you prepare for interview या फिर आप self preparation से ही गए थे? नो मैम, आई एक्चुअली गेव मॉक्स फ्रॉम ऑलिव बोर्ड, सो मैंने अच्छा, पहले you 2 have to. mock थे। यस मैम, मॉक इंटरव्यू आई। Those mocks. Right. So can you tell me the first question that was asked to you in the interview? First question, they asked me to introduce myself, and they asked the basic things about like SBI, the history of SBI. And after that they asked me the GK questions, कि क्या कोई आपने मतलब अभी जो न्यूज़ पढ़ी है, तो उस पे क्वेश्चन थे। एंड मोस्टली दे आस्क्ड मी एचआर क्वेश्चंस, क्योंकि मेरा बैंकिंग का कोई ऐसा बैकग्राउंड था नहीं, कॉमर्स मेरी थी नहीं, तो उनने मुझसे अलग क्वेश्चन पूछे, एचआर वाले क्वेश्चंस पूछे थे। दिल्ली का AQI ज्यादा क्यों है पूछा था, और आजकल जो नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे हैं उसका क्या रीजन था। सो आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, तो मैंने यहाँ बहुत देखे थे वो चीजें, तो मैंने फिर Right. उनको मतलब वो बताया था। तो क्वेश्चंस मेरे से मतलब एचआर के ज्यादा थे, और प्रॉपर बैंकिंग डेप्थ में नहीं पूछा था। So was there any question that you felt was a trap? HR related questions में ज्यादा trap होते हैं.
मैम एक क्वेश्चन था कि उनने मुझसे पूछा था कि अगर मंथ के एंड में देयर वाज अ लॉट ऑफ वर्कलोड एंड आपको आपके पीयर्स को मोटिवेट करना है कि कैसे अपने कलीग्स को मोटिवेट करोगे, तो वो थोड़ा मुझे वहाँ कंफ्यूजिंग लगा था, क्योंकि वो थोड़ा मैंने सोचा नहीं था कि किस एस्पेक्ट में, तो वहां तो मैंने बोल दिया था कॉन्फिडेंटली, पर थोड़ा वो मुझे क्वेश्चन पे ट्रिकी लगा था कि कैसे उसको मतलब बोल सकते हैं, तो वो थोड़ा मुझे लगा था। अच्छा, that was a trap. Okay, but still you replied. यस मैम। Replied. अच्छा, was there any question जिसका आप आंसर नहीं दे पाए थे या सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए थे? मैम आंसर तो सब दे दिए थे मैम। बेसिक्स पूछे तो उन्होंने, तो आंसर तो दे दिए थे। थोड़ा एक जगह पे मुझे थोड़ा वो लगा था कहीं कहीं पे एचआर वाले क्वेश्चंस में, पर मैंने आंसर सारे दिए थे। ओके, बैंकिंग के भी आपने सारे आंसर्स दिए थे। यस मैम। ओके, एंड आई थिंक you got marks on your confidence because they basically see that the more cheerful you are, the more confident you are. So basically they also entertain ना, अगर आप थोड़ा सा नर्वस होकर के जाओगे, डल होकर के जाओगे, so they are also not that much enthusiastic to ask questions. Okay, कितना देर आपका इंटरव्यू चला था? Can you tell मैम me? 9 minutes। 9 minutes. Good enough. Good. So was there any question related to your hobby? Did you have any unique hobby? मैम माय हॉबी वाज डूइंग जुम्बा एंड कार्डियो फिटनेस रिलेटेड एक्सरसाइज। So they did ask me about it, that why I was doing it and why it made me happy. So this was the question about my hobby. और ज्यादा डेप्थ में नहीं गए थे वो? ज्यादा Okay. definitely। Okay, so one last tip that you want to give all our aspirants. अभी 2026 आने वाला है, इस BPU की नोटिफिकेशन students are expecting. So जो जिनको ये लगता है ना कि फर्स्ट टाइम में नहीं निकल सकता, so I think you can give them some definite strategy and you can guide them. So just let them. फर्स्ट स्टेप तो ये है कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना स्टार्टिंग से। मुझे क्योंकि बहुत अंडर कॉन्फिडेंस था, पर जब पेपर दिया, जब क्लियर हुआ, तो रियलाइज होता है कि हम बहुत एक परसेप्शन बनाते हैं एग्जाम के लिए कि ये तो बहुत टफ है, पर वहां पे जब आप जाते हो, देते हो, तो आपको रियलाइज होता है कि वो एक्चुअली में ईजी है। एंड स्टार्टिंग से प्रिपरेशन अपनी प्रीलिम्स मेंस की रखना, एंड बेसिक्स करने के बाद इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव मॉक्स। स्पीड सिर्फ मॉक्स से आएगी, आप कितने भी यूट्यूब वीडियोस देख लो, आप स्पीड मॉक्स से ही ला पाओगे। तो गिविंग मॉक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। रोज मीन्स के मॉक्स मतलब लगाने हैं, और जब परसेंटाइल एक बार 90 परसेंटाइल से ऊपर आ जाएगी, देन आई थिंक इट इज यू कैन बी कॉन्फिडेंट कि आप एग्जाम निकल जाएगा। और आपको कुछ ऐसा लगता है एज पर यू कि वेयर स्टूडेंट्स दे यूजुअली मेक मिस्टेक और यू आल्सो मेड मिस्टेक इनिशियली, कुछ ऐसा था जो आपको लगा देन ग्रेजुअली यू लर्न कि ऐसा नहीं करना चाहिए? मैम आई फेल्ट कि क्वांट्स में मैंने जो गलती करी थी, जैसे पेपर आता था तो आई यूज टू स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस, तो वो एक चीज मैंने नोटिस करी कि स्ट्रैटेजी सही रखनी है। प्रीलिम्स में पहले कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, सिंप्लीफिकेशन और जो बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसके बाद डीआई लगानी, क्योंकि डीआई इजी होती है, उससे प्रॉपर आपके 5 5 10 क्वेश्चन ऐसे ही बन जाते हैं। उसके बाद जो इजी क्वेश्चन हो। एंड मेंस में ये था कि क्वेश्चन चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी कुछ क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट छोटे होते हैं, पर वो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। वहीं पे कुछ डीआई होंगी जो बड़ी लगेंगी, पर आप उसे जब सॉल्व करोगे तो बस कैलकुलेशंस उसमें होती हैं। तो ये चीज थी। एक्चुअली यूजुअली इट हैपेंस कि लेंथियर क्वेश्चंस आर इजियर टू सॉल्व। ये यस इंग्लिश में भी है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ मतलब एक फेयर पैदा करने के लिए होते हैं। जैसे आरसी बहुत लेंथी हो गई बट वो सबसे इजी हो गई, और कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे छोटी आरसीज होती है वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, टफ होती हैं। तो सेम आई थिंक गोज फॉर क्वांट एंड रीजनिंग आल्सो। यस मैम। Okay, thank you so much, Tanushri. I think you have given good guidance. Okay, wish you all the best for your future endeavors. ठीक है, so thank you, all the best. थैंक यू मैम।